Seema auntie used to push my mom to, put me in theatres. I did theatre with her. So I won Boogie Woogie when I was in 9th standard. Ishq Vishk Pyar Vyar Shahid Kapoor ki movie आई थी. So I participated there also and I did get an offer. बंगाली हूँ यार, बचपन में सबसे पहले लड़कों को फुटबॉल दिया जाता है, को लड़कियों को हारमोनियम दिया जाता है. My struggle was not आटा चावल दाल rent, no. My struggle was what more I can do to show what I am. आपको अपने क्राफ्ट के साथ कभी बेईमानी नहीं करना. मैं उस दरवाजे के पीछे जाती ही नहीं थी जहां मुझे लगता था कि वहां कुछ गलत है. बट आई कंडेम दिस कि कपड़े उतारने से पॉपुलर हो जाएंगे. नो, दैट्स नॉट द थिंग. जो ये कर रहे हैं हम याद रखेंगे 10 साल बाद. आज मधुबाला जी को शायद वो मेरे टाइम पे थी भी नहीं, बट आई स्टिल नो अबाउट हर. आज राखी सावंत को उस दौरान सब बोलते थे शी इज लाउड, बट कभी सोचा है उस लड़की ने कितनी मेहनत की. शी इज सो टैलेंटेड. मेरा आधा काम इसीलिए चला गया बिकॉज लिप लॉक है, बैक रिवील करना है, ये करना है, वो करना है. एंड आई एम नॉट सेइंग जो करता है वो बुरा है. 1-1.5 साल का ब्रेक हो गया था शादी से एंड आई गॉट द कॉल एंड बिग बॉस OTT का 2nd सीजन था. सो मुझे लगा ठीक है OTT है, ज्यादा लोग देखेंगे भी नहीं, मैं 1-1.5 महीने में वापस भी आ जाऊंगी, कम बैक भी हो जाएगा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. एंड ऑल माई फ्रेंड्स वर गोइंग एंड ऑल दैट. वेयर आई टुक माई सेल्फ एंड माई बॉडी फॉर ग्रांटेड वॉज रियली चैलेंजिंग. बिकॉज 3 महीना बेड पे लेटे रहना इज नॉट फनी. बाल तो चलो फिर भी चले गए, कोई बात नहीं, आई विल स्टिल लुक नाइस, विग पहन लूंगी. बट those knuckle pain where you can't get up, you can't sit like this more than 15 minutes. Allopathic try kiya, Ayurvedic try kiya, sab try kiya, but it was taking time. The process is time taking. And I said, koi baat nahi, let's take steroids. I took steroids, I put on 20 kgs. Hello everyone, I'm Dr. Sujata Kapoor, host and anchor of your show, Curvy Shine. दोस्तों कहते हैं ब्यूटी व्हेन ब्लेंड्स विद ब्रेन बिकम्स इनविंसिबल, और इसी बात को सच प्रूव करने आज हमारे बीच हैं लीजा मलिक. लीजा मलिक इज एन एक्ट्रेस who's been part of movies like Fixer, Torbaz, and she has tickled our funny bones in this shows like Comedy Circus, Comedy Classes. A woman with furious resilience who has converted every setback into a comeback. So ladies and gentlemen, please put your hands together for लीजा Malik. Lisa, you wear multiple hats: producer, actor, singer, entrepreneur. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्टर से. कैसे स्टार्ट करी आपने अपनी जर्नी एज एन एक्ट्रेस? क्या आप शुरू से बचपन से एक्ट्रेस बनना चाहती थी? Do you belong to filmy background? Not at all. I'm the black sheep in my family. But नौटंकी तो मैं बचपन से थी. That was, I guess, by default since the time I came on this earth. But I'd never aspired to be an actor. I never thought I could reach here because we had no connection whatsoever. Bombay mein, as we speak, we never even had a relative who stayed in Bombay. So I'm born in Calcutta, come from a Bengali background. Then I was raised in Delhi. I always aspired to be a femina Miss India. बट भगवान ने एज आई से मेरे कॉमेडी शोज की तरह मेरे साथ भी कॉमेडी कर दिया. 5'4" के बाद हाइट बढ़ाया नहीं, सो कुड नेवर अपीयर. या बट देन आपने तो 5'4" से मिस किया, मैंने तो 1/4. Imagine. Ouch. So yeah, I never thought that I'll become an actor, but somehow I think I had the inclination. So as I was saying that I did half of my schooling and college in Delhi. So my mom used to put me in a swimming class. I would do some kind of a jhol and I would go and, get admission in a theatre class. Then my mom would put me into a judo class. I would go for my Kathak classes. Somehow that was always there unknowingly. And in school, I was the head of arts and culture department. And like that,
I became Miss Delhi, and before that, there used to be a TV show back then called School Days. Doordarshan pe aata tha, and these people wanted to shoot in my school. Seema Vishwas ji Yes. was our immediate neighbor and my mom's friend. So Seema auntie always used to tell Mama that, you know, Lisa has something in it, and Mama used to be like, yeah, nautanki hai. So that word was like nobody knew that the universe is listening to it. कि वो that really वो मेरे life में आ जाएगा. And Seema auntie used to push my mom to, you know, put me in theaters. I did theater with her, but वो as a hobby करती थी. But when these people came, Dilip Sood and Sameer Sood, if I'm not wrong, they were the producers of the show. They came in our school, took audition. वो crowd के लिए audition लेते ना कि school में हो रहा है shoot, तो school में बच्चे भी crowd पे होंगे. I was an active child and whatever, vocabulary भी माशाल्लाह, तलफ़ुज़ भी साफ था, थोड़ा बहुत वो सब था. So I became one of the main protagonists of the show. That was my first television show, and I was in 8th standard. And then also, I never thought that I would pursue in this career because mom was more focused in padhai and my grandfather was more focused ki, you know, kuch aisa degree vigree and all that. And I always wanted to be in modeling. Alongside, I wanted to be a journalist. I wanted to do mass communication. I wanted to read news. But ये भी थोड़ा funny है. पता नहीं क्यों I was always intrigued कि मुझे weather report पढ़ना है. Okay. So my school was in Gold Market and आज तक का ऑफिस होता था वहाँ पे. I would sneak in, watchman. वैसे मैं बड़े स्मार्ट थी. So मेरे पापा का ऑफिस से ऊपर करके I used to sneak in inside the building. और आज तक के बाहर I used to be like this कि यार एक दिन मैं weather report पढ़ूंगी. Little I knew कि आज तक पे मैं बैठ के as a celebrity interview दूंगी. So that's how my journey started. So I won Boogie Woogie when I was in 9th standard. That too, I was a rebel child. YMCA करके है. I used to go there swimming. Yeah. And dance वांस अच्छा करती थी. YMCA. Yeah. So I वो लगता है दिल्ली वालों का. हाँ. So वहाँ पे बूगी वूगी auditions चल रहे थे. And without telling my mom, I went for the audition. They selected me, and when I told my mother, she should have been angry कि बिना बताए why did you do? But she was happy and she supported me, and I won Boogie Woogie. Wow. And that's how my journey started. Like थोड़ा थोड़ा करके मेरा inclination seriousness में आया. Then my mom supported, and इश्क विश्क प्यार व्यार शाहिद कपूर की मूवी आई थी. Channel V या MTV ऐसा कुछ था. So I participated there also, and I did get an offer for one of the main leads. Family pressure, and I was in 12th standard, board के exam थे. I even got the letter from Ken Ghosh to come to Bombay and be part of the film in one of the roles. Okay. But वो जब बोलते हैं ना किस्मत में जितना लिखा होता है जिस वक्त लिखा होता है तभी होता है. So I couldn't be part of that film. But उसके बाद म्यूजिक वीडियो का दौर चला. मिस दिल्ली बनी, बिलबोर्ड फेसेस थी, मतलब कौन सा एड है डाबर च्यवनप्राश से लेके केशकांति तेल से लेके पैंटीन गैंग ऑफ गर्ल्स, यू नेम द होर्डिंग एंड आई यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ द होर्डिंग. तो एक्टिंग तो नौटंकी तो बचपन से हाँ जी, बिल्कुल. सिंगिंग कहाँ से आई? बंगाली हूँ यार. बचपन में सबसे पहले लड़कों को फुटबॉल दिया जाता है और बच्चियों को लड़कियों को हारमोनियम दिया जाता है. हाँ, yes. But I'm not a trained singer, but it's just the genes that I have of a cultured family where all my aunts are highly educated. I think I'm the only one who's a psychology honors graduate. Otherwise सब PhDs है मेरे खानदान में. नहीं तो जैसे आपकी फिल्म्स रिलीज हुई तो कैसे पूरा चेंज हुआ सिनेरियो इन द फैमिली? क्या जो पहले रिबेल चाइल्ड देखते थे आपको, ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, क्या सबका चेंज हुआ परसेप्शन टुवर्ड्स? Definitely. Once you're popular, you're known, फिर तो जो रिश्ते में नहीं भी होता है उनकी भी रिश्तेदारी निकल आती है. So it's story of I think every family. Yeah. जब म्यूजिक वीडियो का दौर शुरू हुआ, राखी सावंत's first video came, Meghna Naidu's first video came. I was still in school. No, not that I'm trying to tell my age. They are my best friends. But just saying that, you know, coming from that background. So Delhi में उन दिनों corporate shows बहुत होते थे. And as a model, I was popular. Miss Delhi थी. So people knew that Lisa is a good dancer. So somebody offered me a show, 31st. They said 31st event है and you have to perform. I said perform means what? कहते नहीं, we'll give you 12 dancers and आप रिहर्सल करिए. आपको एक 10 मिनट का डांस परफॉर्मेंस करना है, कोरियोग्राफ्ड एक्ट, एंड यू विल गेट पेड 30,000 फॉर दैट.
And I looked at the coordinator that time. I said, मुझे वो करना है जो मुझे करने में सबसे मजा आता है. उसके लिए I'm getting paid also. Why not? यार करती हूँ. So that's how I did my first live show, which was for Airtel. I still remember. It was Airtel's dealers meet. And then word of mouth spread that amazing dancer, amazing performer, and somebody offered me a music video. That's how my first music video, Chicks on Fire, happened. I gave my exam final year, I still remember, and the second flight I took to Bombay. And is baat ko aaj almost 18 saal ho gaya. I've never gone back. Oh, wonderful. And that song became a super hit. Little I knew. I didn't sing for that. Akriti Kakkar was the singer. Okay. And then गाने आते गए, billboards थे, there were 150 billboards, 200 bus panels, and South के offers आए, did South films, lead, second lead, item number. And उन दिनों बहुत क्रेज था कि item number, item number, item number. अब तो चलो ठीक है, it's part of the movie. But because I was a good dancer, I started getting work. And then serial came on my way, and then it's just... जैसे आपने बोला कि मैंने साउथ के कुछ आइटम नंबर्स किए, और उस टाइम पर साउथ इंडस्ट्री की जो कास्टिंग होती थी वो बहुत कंट्रोवर्शियल रहती थी. तो आपने कुछ कास्टिंग काउच फेस किया? सी कंट्रोवर्सी कहाँ नहीं है. कंट्रोवर्सी एयरलाइंस में है, कंट्रोवर्सी पॉलिटिक्स में है, कंट्रोवर्सी कॉर्पोरेट पे है. इट्स हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ. आपके हाँ या ना बोले बिना कुछ नहीं होता है. दिस कास्टिंग काउच ऑफ कोर्स होता होगा एंड हुआ है. आई हैव हर्ड अबाउट स्टोरीज, आई हैव हर्ड पीपल क्राई, एंड कई बार फाउल क्राई भी होता है, यू नो, कि नहीं हुआ है तो भी बोलते हैं. बट ऑनेस्टली आज 18 साल मुझे इस जगह पे हो गए और बॉम्बे मेरी कर्म भूमि है. आई विल नॉट से एनीथिंग दैट आई हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड. आई हैव हैड द बेस्ट ऑफ पीपल. आई हैव हैड the most wonderful people in the journey of my career. So I feel it is all up to you how you present yourself also. And कई बार क्या होता है ना, एक होता है need, है ना, एक होता है greed. बहुत thin line होता है. जैसे sexy and being sleazy के बीच में thin line है. So अगर वो thin line को आप maintain नहीं रखेंगे, then you will face consequences. Need थी, पैसे कमाने थे, had to take care of the family, had to do whatever a star needs to be done, you know, gel nails ये वो. बट अगर मुझे लुई विटॉन बैग की ज़रूरत नहीं है और मैं नहीं कमा पाऊंगी तो मुझे नहीं खरीदना है. तो वो लाइन क्रॉस करे और आपको वो शौक पूरे करने, then you'll jump into wrong places. It's all here. You need to be content in what you're doing. So I have never faced things like that. I've had the best of people. मैं उस दरवाजे के पीछे जाती ही नहीं थी जहाँ मुझे लगता था कि वहाँ कुछ गलत है. I had that boundary wall around me. सो लीजा, इनिशियली कुछ स्ट्रगल रहा मुंबई में, बिकॉज दिल्ली और मुंबई, क्योंकि मुंबई में जो भी आता है सबकी अपनी स्टोरीज होती हैं. शुरू में तो जैसे बोलते हैं ना, मुंबई अपनाने में टाइम लेती है. तो कुछ आपको ऐसा लगा, कुछ इनिशियल स्ट्रगल, जब कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हुआ, आपने सोचा नहीं अब मुझे वापस जाना चाहिए, मेरा नहीं हो रहा मुंबई में? नहीं बाबा, मुझे तो ऐसे खुले, मतलब शाहरुख खान सर करते ना ये वाला पोस्ट, वैसे अपनाया है मुझे बॉम्बे में. आई कम फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली. आई वोंट से वी वर very rich, but upper middle class family where I had everything on my platter. I got my car. I drove from Delhi. Oh. I bought my own car when I was 16 years old. So I was already earning in Delhi. I was one of the top models, billboard faces. And ऊपर वाले की कृपा से I have met the right people. So struggle मेरा शुरू हुआ after becoming a star. To maintain that spot, to get more work, to get the best work. That was my struggle. My struggle was not aata, chawal, dal, rent. No. My struggle was what more I can do to show what I am actually as a performer or as a talent. तो आपको ऐसा लगा कि you lost some good projects because आप और दो आप इस्टेब्लिश थे बट इंडस्ट्री से नहीं थे, कुछ नेपोटिज्म कभी फेस किया, कुछ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन आपको लगा ऑन द सेट भी? कभी आपको ऐसा लगा कि अगर आपने कुछ बड़े स्टार्स या एक्टर्स के साथ काम किया तो आपको फील हुआ कि So I have lost a lot of project. I have volunteered to lose those project because मेरे कुछ उसूल थे, जो चीज़ें उसूलों के खिलाफ थी मैंने नहीं किया. That's why I'm saying ना, it's all in here. अगर आप अंदर से खुश हो in what you're doing. तो मेंटल हेल्थ का भी इम्पैक्ट नहीं हुआ? बिकॉज क्या होता है ना, आपको फेम की आदत लग जाती है और जब आपको वो नेम और फेम मिलता है और वो हल्के हल्के सरकता है जब, तो इंसान को मेंटली कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करता है, इमोशनली कहीं अफेक्ट करता है, एंड देन फॉल इनटू द प्रे ऑफ एडिक्शन. That's exactly what I said. Need and greed. So मुझे पॉपुलर एंड सक्सेसफुल होना था, मुझे फेमस नहीं होना था.
मुझे चाहिए था कि लोग बोले हाँ इंसान अच्छी है, टैलेंटेड आर्टिस्ट है. सो डे वन से मुझे पता था आई हैड नोबडी इन द इंडस्ट्री. आई रीच्ड हियर वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी. उसके बाद से पहला गाना हिट होना, सुपर बिग अचीवमेंट फॉर मी. देन हैविंग माई ओन हाउस, अरे बाप रे क्या ही कर लिया लड़की ने. देन बाइंग अ BMW, ओ वाओ क्या कर लिया. देन डूइंग 20 shows a month. So understand, nothing was planned. I never came with a purpose here. I came to fulfill my wishes, which was coming true. बट अगर कोई ऐसा इंसान है जो अपनी लाइफ में एक्चुअली उसके लिए एक्टिंग पैशन है एंड ही वांट्स टू मेक बिग इन द इंडस्ट्री बट उसका इतना स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, तो एनी टिप्स एंड वो कैसे अपने आप को प्रिपेयर करे? या तो अपने पैशन को सेट असाइड कर दे, क्या उसकी जगह है, क्या इंडस्ट्री ऐसे लोगों को अपनाती है? 100% अपनाती है. Again, it's all luck. It's being at the right place at the right time. I have always said in all of the interviews and when I used to give motivational speeches also, I've always said, बॉम्बे एक ऐसी जगह है, आपको एक्सेप्ट कर लिया तो आपको अबंडेंस में देगी माँ मुंबा देवी. बट आपको अपने क्राफ्ट के साथ कभी बेईमानी नहीं करना है. वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, वेदर यू वॉन्ट टू बी एन एक्टर, वेदर यू वॉन्ट टू बी एन इन्फ्लुएंसर, तो अभी नया नया मार्केट में आया है कोविड के बाद. उससे पहले तो इन्फ्लुएंसर नाम की कोई चीज़ थी भी नहीं भाई. हम लोग डाल देते थे इंस्टाग्राम में, चल गया, नहीं चला नहीं चला. ये यूट्यूब ट्रेंड एंड मिलियन एंड बिलियन वाला गेम अभी पता चला है. बट देन आई ऑलवेज टेल पीपल टू हैव अ बैकअप. इफ यू हैव द लग्जरी, नॉट फाइनेंशियल, the talent wise luxury, to do something where you have a stable income. Like I always had a knack of opening my own restaurants. I'm a good cook, I'm a good interior designer. So fortunately I've always invested. अगर मैंने आज 2 लाख रुपए कमाए हैं and my friend is opening a cafe, so I would go and say क्या ये चलेगा 2 लाख, will I get some share? So like that, if you can have a stable income and alongside you struggle for your passion, then there is no way you can get into any wrong direction and wrong hands. So I've always told everybody, learn your craft, be honest towards your craft. करना है इसलिए मत आओ, पॉपुलर होना है इसलिए मत आओ. अगर पॉपुलर होना है उसके पीछे बहुत मेहनत है. तो कैसे अपने स्किल्स को हून करें, डिक्शन पे कैसे काम करें? बिकॉज आजकल तो इफ़ यू हैव दैट काइंड, एवरीबडी थिंक्स कि मेरा फेस अच्छा है, मेरी फिगर अच्छी है, तो मुंबई बाहें खोल के मेरा इंतज़ार कर रही है और मैं दिल्ली में यूजुअली ऐसी मेंटालिटी है. कैसे अपने स्किल्स को हून करें, कैसे डिक्शन पे काम करें, कैसे क्राफ्ट को इम्प्रूव करें? कुछ टिप्स. 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स है. इन्फ्लुएंसर है तो बहुत सारे, बट मैं इन 3 पे फोकस करके बताती हूँ. बीइंग अ सिंगर और अ परफॉर्मर, पॉप स्टार ऑन स्टेज एंड अ हार्डकोर एक्टिंग करियर. आज आप इन्फ्लुएंसर्स में से द बेस्ट इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर हर्ष बेनीवाल है. ओके, ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स है, वो वर्क, वो स्लॉग्ड, मेहनत की है उन्होंने. एक एक दिन एक एक कंटेंट बनाने के पीछे कहाँ कहाँ नहीं गए हैं वो लोग, मेहनत की है, तब जाके हर्ष बेनीवाल आज की तारीख में स्टार है. बीइंग अ पॉप स्टार, मैं मेरी बात करती हूँ. मेरे सामने मेरा टीम बैठा है, उनको पता है मुझे कभी इधर फ्रैक्चर रहता था, कभी उधर फ्रैक्चर, कभी नी फ्रैक्चर्ड है. आई एम डूइंग ऑल दैट स्किल्स ऑन द स्टेज. मेहनत की है मैंने. आई हैव डन थिएटर्स. मैं कभी कोई एक्टिंग स्कूल में नहीं गई हूँ, मेथड एक्टिंग सीखा है. आज आप एज एन एंकर यहाँ होस्ट बैठे हैं. You must be practicing your lines 1000 times before taking an interview. It's not that कि आप आ गए और हो गया, इंटरव्यू ले लिया. So ये जो एक शो वर्ल्ड आज की तारीख में आ गया है ना, with all due respect to everybody, but I condemn this कि कपड़े उतारने से पॉपुलर हो जाएंगे. No, that's not the thing. आप पॉपुलर होंगे तो ऐसे लोगों के पीछे ही भाग रहा है. आप देखिए ना, समझ नहीं आता एक्चुअली फैशन क्या है. आप पीछे से खुला है, आगे से खुला है, समझ में नहीं आ रहा है. मतलब वी आर सो कंफ्यूज एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड हर्ड मेंटालिटी एंड एवरीबडी इज फॉलोइंग व्हाट द अदर पर्सन इज डूइंग विदाउट अप्लाइंग हिज और हर ओन ब्रेन. सी, पैपराजीज को पैसे भी कमाने हैं. आई एम नॉट अगेंस्ट पैपराजी. थोड़ा सा कभी गुस्सा आता है उनके ऊपर, that why you even printing it. Then I understand they have to run their houses, they have to run their family, they have to run the office, bill, बिजली का सब कुछ. But at the end of the day, क्या उन लोगों को जो ये कर रहे हैं हम याद रखेंगे 10 साल बाद?
लीजा, बट द प्रॉब्लम इज कि हम मुंबई में हैं, हमको पता है, हम इंडस्ट्री का पार्ट हैं, तो हमें पता है रियलिटी क्या है. अगर आप टियर 2 टियर 3 सिटीज में जाओ तो लड़कियों को लगता है कि ये सब करना ही एक्ट्रेस बनने की एक प्री रेक्विजिट है. I have spoken to a lot of girls. कुछ लोगों को लगता होगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ सबको लगता है, कुछ लोगों को लगता होगा, definitely. That is why I am against the influencer marketing. इन्फ्लुएंसर वर्ड क्या होता है? आप किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, है ना? यहाँ गलत तरीके से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है लोगों को, बट फॉर दैट देयर हैज टू बी अ स्टॉप. और वो स्टॉप कौन लेगा? द सीनियर्स इन द इंडस्ट्री, है ना? आई एम स्टिल एट अ पोजिशन जहाँ मेरी शायद अपील ना अनसुना कर दे लोग, बट people who are senior than me or people who have that power to stop things like that, they have to come together and put a stop. कैसे होगा? Because Madhuri Dixit is like all-time favorite actress. Like I have loved her acting, her dancing. But अब वो भी social media पे reels बना रही है. She is devoting. But वो reels बना रही है. हाँ. वो reels बना रही है. वो सब नहीं कर रही है बाकी जो कर रहे हैं. आज मधुबाला जी को शायद वो मेरे टाइम पे थी भी नहीं, but I still know about her. I know her songs. R.D. Burman, I know his songs. ये लोग हैं जो रियल क्राफ्ट है, जिनको सालों साल याद रखा जाएगा. आज हम उर्फी जावेद को पॉपुलर करके बैठे, बट स्टिल आई एम नॉट अगेंस्ट उर्फी जावेद. एटलीस्ट शी वॉज पुटिंग सम ब्रेन बिहाइंड हर डिजाइन्स. इट वॉज अ क्राफ्ट एंड टैलेंट दैट शी इज शोइंग. आज राखी सावंत को उस दौरान सब बोलते थे शी इज लाउड, शी इज लाउड, बट कभी सोचा है उस लड़की ने कितनी मेहनत की? शी इज सो टैलेंटेड. She is one of the most talented dancers I've ever met in the industry. I've done thousands of shows with her. But उसके अलावा जो ये so called आजकल आते हैं ना, मतलब मुखर्जी शायद कुछ सरने में, मैंने कल परसों ही देखा. What are they doing? Yeah. Kanggana Sharma. We should ban people like them. What are they doing? Yeah. That's not influencing. This is not our industry. Our industry is all about craft. But this is not craft. But इंडस्ट्री भी तो बहुत ज़्यादा कमर्शियल हो गई है. अगर आप देखो, अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाओ विच सपोर्ट्स अ सोशल कॉज, ठीक है, और एट द सेम टाइम आप देखो OTTs की डिमांड क्या है. दे वांट फिल्म्स विद दैट मसाला, विद ग्लैमर. आई अंडरस्टैंड. इट्स डिमांड एंड सप्लाई. जिस दिन पब्लिक नहीं पसंद करेंगे, अपने आप लोग बनाना बंद कर देंगे. अगेन आई एम सेइंग इट्स डिमांड एंड सप्लाई. पब्लिक को एक टाइम पे धक धक करने लगा चाहिए था, एक टाइम पे राम लखन जैसी फिल्म चाहिए थी, तो उस टाइप की फिल्म बन रही थी. आवर ऑडियंसेस हैव आल्सो चेंज्ड. वी इंडियंस आर द मोस्ट डबल स्टैंडर्ड पीपल. हमें देखना भी है, हमें बुराई भी करनी है. सो इट्स अ वेरी कंफ्यूज सोसाइटी वी आर लिविंग इन. सो आज हम सास भी कभी बहू थी जैसे सीरियल को पता नहीं 10-10, 15-15 साल से देख चुके हैं, और अचानक से वी आर watching something where it's all bare skin show, backless, ये वो. मेरा आधा काम इसीलिए चला गया because lip lock है, back reveal करना है, ये करना है, वो करना है. I am not saying जो करता है वो बुरा है. That also needs a lot of guts. It's at the end of the day craft. But कुछ shows होते हैं उनकी जरूरत नहीं है तो भी show तो अच्छा ही है. But it's again demand and supply because we live in a hypocritic society. सो आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते हो ना. मेकर्स को ब्लेम कर सकते हो ना, जो ऑडियंस है उनको ब्लेम करोगे, बिकॉज दैट्स हाउ इट इज. डिमांड एंड सप्लाई. जिस दिन डिमांड बंद हो जाएगा, सप्लाई अपने आप बंद हो जाएगी. आप पंचायत जैसी सीरीज देखो, क्या वहाँ कुछ है, बट सुपर हिट सीरीज है. वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडियंसेस. तो हम मेकर्स भी कंफ्यूज होते हैं कई बार कि क्या करें भाई. मेकर्स तो बहुत कंफ्यूज्ड हैं. सो आई एम प्रोड्यूसिंग अ सीरीज. अब मेरे सीरीज में it's hardcore comedy. It's based on a गाँव, and it's like पंचायत. उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है. A lot of people told me it's not up to the market. मैंने कहा no, that's how I want my series to go. That's me. So I'm making something like that. There are makers who want to make things like that. आज आप करण जौहर की मूवीज उठा के देख लो, कहीं ऐसा कुछ आपको नहीं दिखेगा. राजश्री प्रोडक्शन उठा के देख लो, चल रहा है ना सालों से. तो फाइनली आपने कब सोचा कि अब मुझे सीरीज कोई प्रोड्यूस करनी चाहिए? कैसे थॉट आया आपके माइंड में? So I'm married last 3 years. This September it will be the 3rd year, and my husband's from Delhi. हमेशा से काम करने की आदत रही है, मतलब घर बैठने की कभी आदत नहीं रही है. Whether it's my restaurant and business, I was one of the first actor to have a microbrewery in Bombay. Wonderful, yeah. Called Pump Room. अच्छा. जो अभी नहीं है. We got out of the project 7 years back. I'm a hustler. मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ. I cannot sit at home. Whether it was lockdown phase जहाँ COVID में
लोगों के पास काम नहीं था. आई यूज्ड टू मेक कॉन्टेंट्स ऑन यूट्यूब, आई यूज्ड टू डू थिंग्स. मेटावर्स पे शोज कर रही हूँ. तब मेटावर्स होता क्या है मुझे वो भी नहीं पता था. सो आई गॉट मैरिड टू समवन हु इज अ टेकी. तो मैं तो पेटीएम से पैसे कैसे भेजते हैं वो लॉकडाउन में सीखी हूँ. एंड दिस गाय मेक्स थिंग्स लाइक दैट. So for him, I am an unpad. So a lot of time when we are sitting on projects and I don't know AI बनाते हैं उनके लिए मतलब नॉर्मल चीज़ है. हम दाल बनाते हैं वो AI बनाते हैं. हम पकौड़े बनाते हैं वो ऐप ऐसे ही बना देते हैं. So he's a hardcore techie. Okay. And I'm working since the age of 15. So it was a long due that I should take break. So मैं 2 साल छुट्टी पे थी वॉलंटियर करके. अब मुझे काम नहीं करना है, कुछ नहीं करना है. And I'm in Delhi. Traveling between both the cities is not easy, and obviously शादी के बाद you're married, you know संसार है. हम at the end of the day we are Indians, we have to be part of the family to be able to adjust in a new family. So I was focusing more there, but वो साल 6 महीने बाद कीड़ा काटना शुरू हो गया. कुछ करना है. I tried being part of his business, समझ ही नहीं आए होता क्या है ना, because tech world is absolutely different, but still whatever little bit I could, I did India's first blockchain week, which was a super hit event in Delhi. Okay. So it was called Indian blockchain week. So एक हफ्ते का पूरा event था about metaverse, about crypto, about education, blockchain में कैसे implement करेंगे, all that. But हो तो actor, कुछ ना कुछ करना है ना, कैसे आए कुछ ना कुछ करना है. Then my husband made some technology and मुझे प्रोड्यूस करना था सालों से. मुझे डायरेक्ट भी करना है, बहुत सालों से मन था. I thought this is the best time to do. So we created a script which is a hardcore comedy, and that's how the journey started. मतलब that gives me more time to stay with my husband and do what I like doing also. So अभी आपका 100% कंसंट्रेशन इसी वेब सीरीज में है which you are producing, या कुछ और भी प्रोजेक्ट्स हैं और कुछ और आपके माइंड में है जो आप एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो? ये जो वेब शो है ये तो है ही है. उसके अलावा there are 2 more scripts that we have created. उसमें से एक तो मैंने ही लिखा है. It's called Shades of Maids. Okay, Shades of Maids. ये मेरी आप बीती है. पिछले 3 साल में जितने अलग अलग तरह के हेल्पिंग हैंड्स घर में आए हैं, कोई शराबी, कोई ऐसे, कोई वैसे, तो उन्हीं को क्यूरेट करके वी हैव मेड अ सीरीज. इंटरेस्टिंग है, जब बनेगा तो आपको मजा आएगा. Alongside I am working on a short film for Cannes, and इससे पहले कि लोग लीजा मलिक द पॉप स्टार को भूल जाए, जल्दी एक गाना भी आना जरूरी है. अच्छा. So now that I have the AI in the house, कि आज मुझे बटर चिकन खाना है या बटर पनीर, वो easily बन सकता है. So I'm working on couple of songs that will be absolutely made by the tech app which my husband created. Wonderful. Interesting for the industry. तो मतलब इतनी डिजिटलाइजेशन जो एजुकेशन और दूसरी फील्ड्स में हो रही है, तो आपके थ्रू हम बहुत जल्दी एआई का यूज़ देखेंगे कि कैसे हम उसको म्यूजिक में, सिंगिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. इनफैक्ट मेरी सीरीज में अभी हमने 20% ही शूट किया है. हम सेकेंड शेड्यूल जाएंगे इन सितंबर. शी इज़ द को राइटर. वी कॉल हर लैला. उसने अपना नाम खुद ही रखा है, लैला. So she's the co-writer. She's done the background score. She's done the DI. She's done the DI also. Yes. You have to see Laila, and you'll see her soon in the market. And in fact, हमें कहाँ से क्या सोर्सिंग करना है वो भी वही बताती थी. So हमारी Blinkit के ऑर्डर्स भी वही करती है. तो अब मुझे ऐसा लग रहा है इंडस्ट्री में तो बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट और होने 100%. And because AI तो सब कुछ रिप्लेस कर रहा है. Yeah, the other day my husband was saying, why do you need to shoot? Why do you need to shed weight? She'll shoot you. मैंने कहा हेलो, गाना तक ठीक है. I want to dance in my video. Let me be. वो आप अपना AI खेलते रहो, मुझे मेरा सिंगर एक्टर खेलने दो. So yeah, in the coming days and future, AI is going to take over. That's for sure. तो कैसे मतलब अगर आई थिंक इट्स द नीड ऑफ द आवर कि हम सब लोग अपने आप को विद द चेंजिंग सिनेरियो एआई से इंट्रोड्यूस कराएं, एआई के बारे में और जानें, डिफरेंट एप्स जो भी मतलब ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो करेंसी, लाइक ये तो पूरा ही अलग फील्ड था. आपने पूरा 1 week ऑन ब्लॉकचेन. यस, बिल्कुल. बीइंग एन एक्टर और 1 week. एंड ट्रस्ट मी, आई डिडंट नो द मेटावर्स शो दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, हमने जो लॉकडाउन पे किया था,
मुझे पता ही नहीं था कि इसको मेटावर्स बोलते हैं. अच्छा. So I learned when I met my husband, oh shit, yes, I did a show on metaverse. I didn't know this is called metaverse. So there are things that we use in day-to-day life in the film industry or otherwise also. That is part of the blockchain industry. So it's a learning phase. अभी थोड़ा बहुत सीखी हूँ मैं. Long way to go. वन फाइनल क्वेश्चन जो मुझे पूछना है कि इतने लॉन्ग करियर में कोई ऐसा डार्क फेज आया जिसमें आपको लगा कि बहुत चैलेंजिंग था उठना, अपने आप को कन्विंस करना, कुछ ऐसा डार्क फेज आया आपकी लाइफ में और आपको ऐसा लगा कि अगर मैं अपने आप को नहीं संभालूंगी तो मे बी कुछ गलत एडिक्शंस या इसमें ऐसा कुछ फेज आया कभी आपकी लाइफ में? Honestly, I won't say dark phase in my career, but मैं ना बहुत बहुत हैप्पी गो लकी इंसान हूँ यार. मेरी ना नीड्स बहुत कम है. मैं वही तो बोल रही हूँ ना, मैं बहुत कंटेंट रही हूँ लाइफ में. आई हैव बीन द फादर ऑफ द फैमिली. आई डोंट हैव अ फादर. सो आई हैव रेज्ड माय ब्रदर सिस्टर. माय मॉम हैड कैंसर जस्ट बिफोर लॉकडाउन. It was challenging for a lot of people, but then it just passed. Guruji की blessing है, ऊपर वाले की blessing है. Passed by that. But then abhi after marriage, 1 year of my own health condition shook me a little bit because I've always been a very healthy girl. I was known for my fitness. हर दिन 40 किलोमीटर cycling because ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत थी. सुबह 4:30 बजे. Cycling from here to सिद्धिविनायक मंदिर, coming back, then hitting the gym. By the time you guys will surface, मेरा नाश्ता करके खत्म हो जाता. So I was a very routine वाली लड़की. I am not much into drinking. I'm once in a blue moon maybe with a glass of wine. वो भी पिया तो पिया, नहीं पिया तो नहीं पिया. लगा रही कि आपने फिल्मी सर्कल मिस किया because I think that फिल्मी सर्कल it's वो so तभी तो मैंने ज्यादा फिल्में नहीं की है ना. तभी तो ज्यादा फिल्में नहीं की है because तो उनका शुरू होता था 10 बजे के बाद. फिल्मी सर्कल में नहीं है तो you'll miss on many projects. I have missed on many projects. That's why I said I volunteered in missing those projects. मुझे घाई एंड हाई नहीं थी. I volunteered. They are very good friends of mine. Everybody. बट वो 10 बजे के बाद जो जिंदगी शुरू होती है, 10:30 बजे तक तो मैं अपने सपने में होती हूँ, पेरिस में, लंदन में. कि हम ही लोग नहीं है कि जो प्रोजेक्ट्स लूज कर रहे हैं. ना. एंड आई डोंट रिग्रेट ऑन मिसिंग दोस प्रोजेक्ट्स. रिग्रेट करूँ तो फिर मैं डिप्रेशन में जाऊँ. सो आई वाज टेलिंग यू कि मेरा हेल्थ कंडीशन डिटोरेटेड जस्ट 2 years बैक. आई वेंट थ्रू 2 miscarriages back to back. And unknowingly, I developed an autoimmune disorder where I lost 80% of my hair. And अभी तो बाल वापस आ गए. And then alongside I developed rheumatoid arthritis. And that year मुझे हर साल बिग बॉस से कॉल आता है और मैं बिग बॉस नहीं जाना चाहती थी. बट 1-1.5 साल का ब्रेक हो गया था शादी से. एंड आई गॉट द कॉल. एंड बिग बॉस OTT का 2nd season था. सो मुझे लगा ठीक है, OTT है, ज़्यादा लोग देखेंगे भी नहीं, मैं 1-1.5 महीने में वापस भी आ जाऊँगी, कम बैक भी हो जाएगा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. एंड ऑल माई फ्रेंड्स वर गोइंग एंड ऑल दैट. And just when I came to Bombay to shoot, photo shoot and all, एक पैच बाल का गया. मुझे लगा शायद कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया होगा. Then दूसरा पैच बाल का गया. तब तक I was all cool. 1 हफ्ते के अंदर I lost this much hair. Then it was alarming. एंड मुझे दर्द मेरे नकल्स में और हर जगह हो रहा था बहुत दिनों से. मुझे लगा मे बी बैक टू बैक 2 miscarriages हुए हैं, सो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होगा. एंड आई हैव ऑलवेज बीन वर्किंग आउट, घर में बैठी हूँ तो शायद इसलिए होगा. डिडंट नो. वो एक जो फेज था ना, जो 2 महीने आई वाज ऑन बेड रेस्ट, आई डिड गो थ्रू डिप्रेशन अननोइंगली. आई डिड गो थ्रू postpartum depression also, जो miscarriages के बाद भी होता है. And because I've always in my mind I'm a शेरनी कि नहीं मेरे को कुछ नहीं हो सकता. That alpha, so I am the alpha in the pack, you know, घर का मर्द. Although I'm married, still I'm the घर का मर्द. मतलब स्क्रू लगाना है तो लीजा लगाएगी, वॉलपेपर लगाना है तो लीजा लगाएगी, है ना, बाहर जाके कुछ. So I've always been like that in my head. So वो 2-3 महीने का जो मेरा फेज था, where I took myself and my body for granted, was really challenging. Because 3 महीना बेड पे लेटे रहना is not funny. And then when I realized कि नहीं लीजा, you have to get back to work and you have to do something. बाल तो चलो फिर भी चलो चले गए, कोई बात नहीं, I will still look nice, wig पहन लूँगी. But those knuckle pain where you can't get up, you can't sit like this more than 15 minutes. That did put me in a spot and depression. But luckily support system था. And then I had to take extreme measures. So fit, active, मतलब मैं बैठ नहीं सकती हूँ. आई एम नॉट अ योगा पर्सन. आप मुझे योगा करने बैठोगे, मैं 5 सेकंड बाद ऐसे देखूंगी हो गया क्या सबका. आप मुझे 100 किलो वेट लिफ्ट करने बोलो, मैं तोड़ फोड़ लूंगी अपने शरीर को, लेकिन कर लूंगी. बट आई
cannot sit still. I'm always a hyperactive person. So allopathic try kiya, Ayurvedic try kiya, sab try kiya, but it was taking time. The process is time taking. And I said, koi baat nahi. Let's take steroids. I took steroids. I put on 20 kgs. From a 49, 52, 55, जो कि बहुत ज़्यादा weight हो जाता था मेरे लिए, to almost 70 kgs touching. That was a phase where I did go through a little, turmoil inside. But ठीक है, कोई बात नहीं. That was a phase, and yeah, here I'm back again. Lisa, you are such an inspiration, and it was absolute an honor to be sitting here and doing this inspirational chit chat with you. So I just wish you best of luck for your future endeavors, and we look forward to your web series. Thank you. Because I'm sure it is going to set example for many. Yeah. So you're truly multi-talented, versatile, and a lady who wears multiple hats but wears all of them with style and difference. Thank you. Thank you so much. It's an honor to have you on our show. Thank you. It was my pleasure.